بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کاشف ظہیر کمبو، تجزیہ کار اور پالیسی ایکٹیوسٹ ہیں، اور مہتاب اشرف، صدر پریس کلب دھیرکوٹ اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ ہم جانیں گے مقبوضہ کشمیر کی جو بدلتی ہوئی سچویشن ہے، اور خاص کر کے وہاں پہ جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے مودی کی حکومت کی جانب سے، اور جموں و کشمیر پر بھارتی قبضہ، جدید دور کے نو آبادیاتی جو نظام ہے اس کا بدترین مظہر ہے۔ منیر اکرم جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس حوالے سے بھی بتایا جائے کہ وزیراعظم، نگراں وزیراعظم کا بھی جو یونائٹڈ نیشن کا دورہ تھا، انہوں نے وہاں جو خطاب کیا ایک دلیرانہ موقف اختیار کیا، لیکن سمجھنے کی بات یا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام تر سچویشن، تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود سٹل جو مقبوضہ کشمیر کی سچویشن ہے وہ ایسی ہی ہے۔ وہاں پہ ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے۔ کل بھی 2 کشمیریوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا۔ سچویشن ایسے آگے بڑھ رہی ہے کہ جو مسلم امہ ہے خاص کر کے، اور پاکستان کو اس حوالے سے اپنا موقف سخت ترین دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا۔ اس پر کاشف ظہیر کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سے جانوں گا کہ جو سچویشن پریویل کر رہی ہے اور جیسے آگے بڑھ رہی ہے سچویشن، اس پر آپ کیا کہیں گے، آپ کا کیا موقف ہے؟ اور خاص کر کے جو وزیراعظم، نگراں وزیراعظم ابھی دورے پر تھے، اور جس طرح انہوں نے موقف اختیار کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو۔ فرسٹ آف آل تو یہ جو ہمارے جتنی بھی کنٹمپریری ڈیولپمنٹس خطۂ آزادی، ہماری جو آکوپائڈ ویلی ہے، وہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے کنٹیکسٹ میں ہمیں بی جے پی کی فلاسفی اور اس کی آئیڈیالوجی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ فار انسٹنس جو بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے اس میں ہندوتوا جو فلاسفی ہے بیسیکلی اس کی ایک بنیادی اہمیت ہے، اور وہ دے تھنک دے نیڈ ٹو ہیو این ایکسپینشنسٹ ماڈل، اور وہ اس جو وہاں پر ہندو ریاست ہے وہ نہ صرف اس کو وہاں پہ انکلکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ اس فلاسفی کو ایکسپیڈائٹ کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر ہندوازم ایک اور ہارڈ کور جو نیریٹو ہے وہ کیا جائے، اور اسی کی بنا کے اوپر ڈیموگرافک شفٹ وہاں پہ کیا جا رہا ہے بیسیکلی۔ فار انسٹنس 1947 کا جو سٹانس ہے یو این او کے انڈر وہ ہے پلیبیسائٹ ڈیسائیڈ ہوگا ہندو مسلم پاپولیشن کے حوالے سے۔ جب آپ وہاں پہ ڈیموگرافک شفٹ کر دیں گے تو یہ الٹیمیٹلی اس خطے کے لیے اور وہ جو یو این کی ریزولوشنز ہیں ان کے لیے بڑی ایک ڈراسٹک کنسیکوینس ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو، جس طرح نگران وزیر اعظم صاحب نے سینسٹائز کیا، بلکہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ یو این او کی سالیڈیرٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، انٹرنیشنل جو پیس ہے اسے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ یو این او کی ریزولوشنز کی جو بنیادی ان کی روح ہے اس کے مترادف، اس کے جو مخالف چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر نہ صرف انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے بلکہ انہیں اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے ہیومن رائٹس کے ایشو کے طور پر اسے انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ کاشف ظہیر صاحب، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ صدر طیب اردگان جو ترکیہ کے صدر ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے موقف اٹھایا، اور ساتھ سعودی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اسٹرانگ موقف اختیار کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو سعودیہ دوسری طرف جو انڈیا کے ساتھ مراسم، تجارتی مراسم بڑھا رہا ہے، تو یہ کیسی پالیسی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ دنیا کے اندر ہمارے آپ غور کریں تو جتنی بھی جن کنٹریز کی پالیسیز لبرل پالیسیز ہیں اور لبرل اکنامک پالیسیز ہیں، وہ اپنے اکنامک بینیفٹس کو پہلے رکھتے ہیں، اور جو دوسرے ان کے بائلیٹرل قوموں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس کو سیکنڈ یا تھرڈ پرائرٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے، جس طرح ابھی ایگریکلچر کا انیشیٹو پاکستان میں ابھی ایک لیا گیا، اور اس ایگریکلچر انیشیٹو کے اندر ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں انہیں لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پاکستان کو بھی ان کی، ہمارے گلف کنٹریز ہیں، ٹرکی ہے، ان کے ساتھ اپنے اکنامک ریلیشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا۔ وکیل جتنا مضبوط ہوگا مقدمہ بھی اتنا ہی وہ جانبداری کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پیش کر سکے گا، پلیڈ کر سکے گا۔ تو اس کے لیے میرے خیال سے ڈائیورسیفائڈ اسٹریٹجی اپنانی ہوگی۔ ایک، آپ کو ان کے ساتھ اکنامک ریلیشن اسٹرینتھن کرنے ہوں گے تاکہ آپ کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی ہو جائے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر آپ کی بائلیٹرل جو تعلقات ہیں، جو ہماری ایک مسلم امہ کا کنسیپٹ ہے، یونیورسل مسلم امہ 56 کنٹریز ہیں، ان کو بھی سینسٹائز کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹس کرنی ہوگی تاکہ ان کی آپ کے اوپر ایک ڈپینڈنسی ہو اور آپ کے ساتھ وہ زیادہ
पावरफुल तरीके के साथ इंडिया सबसे बड़ी आज के दौर के अंदर उसके ने जो अपनी प्रोजेक्शन की है वो इकोनॉमिक जॉइंट की है। वो कह रहे हैं कि दे आर द इकोनॉमिक पावर ऑफ दिस रीजन, और हमें उनका इंडियंस का मुकाबला माशियत के मैदान में भी, सियासत के मैदान में भी, समाज के मैदान में भी, ये तीनों फोरम्स, तीनों एंड्स के ऊपर जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर हमारा बयानिया, हमारा नैरेटिव जो है वो दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। मेहताब अशरफ साहब, आप भी बातचीत सुन रहे हैं। तनाज़ा कश्मीर एक इंसानी मसला है, मिसाल मलिक इस हवाले से कहती हैं, और दूसरी जानिब वहाँ पे आप देखें कि कैदोबंद की जो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं हुर्रियत रहनुमा, और जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि निहत्ते कश्मीरियों का जो जुल्म और सितम किया जा रहा है, इंसानी हुकूक की खुलेआम खिलाफवर्जी की जा रही है, पूरी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस पर खास करके कश्मीर जो कम्युनिटी है और जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है वो कैसे रोल दे सकती है? बहुत शुक्रिया नवीन साहब। जैसा आपने खुद इसका जिक्र किया कि हिंदुस्तान जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की पामाली इस तौर कर रहा है कि वहाँ पे मुसलसल कर्फ्यू है, मुसलसल 9-10 लाख फौज उनकी वहाँ पे तैनात है, वहाँ पे लोगों का हिरासत किया जाता है, लोगों के कारोबार जो है वो तबाह किए जाते हैं, लोगों का जीना जो है वो दुबैन किया हुआ है। तो इन हालात में जाहिर है कि जब जनरल असेंबली का इजलास हुआ तो बड़ी एक उम्मीद पैदा हुई, और यकीनन उससे मकबूजा कश्मीर के अवाम के हौसलों को भी तकवीत मिली, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया। लेकिन उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि तुर्की के जो सदर है तैयब एर्दोगान, उनकी जो स्पीच थी उसने पूरा माहौल बना दिया, और उसके बाद जो है OIC के जो मेंबर ममालिक थे उनकी उसके बाद आपस में गेट टुगेदर भी हुआ, और कश्मीर इशू पे बड़ा तफसील के साथ जो है वो डिस्कशन भी हुई। और उसके बाद जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने जब जनरल असेंबली से खिताब किया और मौक़िफ़ रखा तो उस वक्त कश्मीरियों ने वहाँ पे और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो एहतजाज करके अपना जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने रखा। जो इस वक्त की सूरत हाल है आप देखें कि उसमें आज़ाद कश्मीर जो हुकूमत है, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, ये क्या कर सकती है। देखिए ये जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत जब कायम हुई तो ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के तौर पर हुई, लेकिन अब वो अपनी जो उसकी असल जो उसके मकासद थे उससे बहरहाल वो उस पे चलते हुए नजर नहीं आती। और मैं अगर ये कहूँ बड़ा क्लियरली कि अब तो सिर्फ यहाँ पे इक़्तिदार की एक रस्साकशी है, और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनकी जो ब्रांचेस यहाँ पे मौजूद हैं उनके दरमियान आपस में जो चीजें चल रही हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो जाहिर है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही। तो इस हवाले से जो आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत है वो अपनी तकरीरों में जरूर कश्मीर का जिक्र करते हैं, जरूर इस पे बात करते हैं, लेकिन कोई ऐसी जानदार पॉलिसी, जानदार मौक़िफ़ जो है वो उस तरह से इख्तियार नहीं करते कि जिससे जाहिर है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को या उनकी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। अगर आप देखें तो जनरल असेंबली में जब इंडिया के वज़ीर ख़ारजा खिताब कर रहे थे तो वो जो वहाँ पे मौजूद कश्मीरी है उन लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि आज़ाद कश्मीर के जो हुकूमत है, इसके नुमाइंदगान, इसके वज़रा या असेंबली के मेंबरान जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों से कोई एक नुमाइंदा अगर वहाँ पे चला जाता और वहाँ पे जाके जो है वो जो लोग आए हैं, जो दुनिया भर से लोग आए हैं, और बिलखुसूस जो मुस्लिम उम्मा के जो लोग हैं, जो लीडरशिप मौजूद थी, उनके साथ मुलाकातें करते और अपना जो इशू है उसको वहाँ पे बयान करते तो शायद उससे ज्यादा फायदा पहुंचता। जब पाकिस्तान बात करता है तो पाकिस्तान खुद एक फरीक है, और पाकिस्तान जाहिर है कि कश्मीरियों का वकील भी है, लेकिन उसको ये समझा जाता है कि ये एक ऐसा फरीक है कि जो कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहता है। वहाँ पे अगर कश्मीरी खुद बात करेंगे उनकी शुरुआत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जो ये मौजूदा हुकूमत है या इसके पीछे की जो हुकूमतें हैं उनकी तरजीह में मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो तहरीक है वो प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं रही। इस हवाले से जाहिर है कि इस वक्त हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का कोई डेलीगेशन नहीं गया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब बसा औकात जो है वो इस तरह के प्रोग्राम जरूर करते हैं और वो मुख्तलिफ फोरम पे जाते हैं। आज़ाद कश्मीर से 2 शख्सियत ऐसी है कि जो बैनुल अक़वामी सतह पे अपने ज़ाती इनिशिएटिव से जाती हैं, जिसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी
हैं और अब्दुल रशीद तराबी हैं जो वहाँ पे फोरम पे जाते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। Exactly. लेकिन हुकूमती सतह पे अगर इनिशिएटिव लिया जाता और उस पर जाके बात की जाती तो शायद ये एक बेहतरीन मौका था कि आप जो है वो तुर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ, आप जो दुनिया इस्लामी दुनिया के और ममालिक के साथ, यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक है उनके साथ वहाँ पे जाके बात करते तो उसके ज्यादा असरात मरतब होते, लेकिन ये नहीं हो रहा। आपने बिल्कुल वजह कहा। काशिफ ज़हीर कम्बो, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगा और आप एक पॉलिसी एक्टिविस्ट भी हैं और साथ किताबें भी आपने कश्मीर के हवाले से लिखी हैं। मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रीवियस मंथ गुजरा है सितंबर का, 13 कश्मीरियों को वहाँ शहीद किया गया है, साथ वहाँ पे अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में। इस हवाले से जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं क्या समझते हैं कि उन्हें कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए बीजेपी के जो अभी मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि डेफिनेटली वोट का एक मरहला आएगा, तो इस तमाम तर सिचुएशन में किस साइड पे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखें जो हमारी, जिस तरह मेहताब साहब जिक्र कर रहे थे, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन बन चुका हुआ है जिसके ऊपर अभी तक इतनी ह्यूमन राइट वायलेशंस के बाद इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उससे सेंसिटाइज नहीं किया जा सका। साउथ एशियन रीजन के अंदर भी कह सकते हैं सबसे बड़ा इशू जी, बल्कि दुनिया का हम कहेंगे सबसे बड़ा मिलिट्री जोन तो यही है ना, जिसके अंदर आप एक पूरी छावनी बन चुकी हुई है। आप इसमें अब कंपैरेटिव लेते हैं, एक और केस स्टडी हमारे पास पैलेस्टाइन की केस स्टडी मौजूद है। चीज़ है कि वहाँ पे भी जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पैलेस्टाइन का इशू है वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनकी कम्युनिटीज़ के अंदर ये एक अच्छी अपनी खासी स्पेस बना चुका हुआ है, प्लेस बना चुका हुआ है। इसराइली जो भी वहाँ पे एक्सपेडिशन करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, वहाँ पे वेस्टर्न कम्युनिटी उनकी फेवर में उठती है उनके साथ। ये चीज़ हमारा डायस्पोरा नहीं कर सका। हम फॉर इंस्टेंस अभी जिस तरह राजा साहब जिक्र कर रहे थे कि हमारी लिमिटेड लोग हैं जो इस कॉज को बड़ी कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है इसमें हमें वेस्टर्न कम्युनिटी को भी साथ, ये जिस तरह से इलेक्शंस होंगे इसमें बहुत हायर लेवल के ऊपर रिगिंग होगी, क्योंकि सेंटर के अंदर बीजेपी की हुकूमत है और उन्होंने अभी इसके ऊपर उनकी वहाँ के जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने अपने वहाँ पे कैंप लगा लिए हुए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। वो ना सिर्फ लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी एजेंसीज जो हैं वहाँ पे हमारे फैमिलीज़ को तंग किया जा रहा है, और आगे इलेक्शंस के रिजल्ट्स फेवरेबल बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और ये इस खित्ते के सबसे जो है वो हाईली रिग्ड इलेक्शंस होंगे जो अभी हम देखने जाएंगे वहाँ पर। तो जी प्लीज। जी, आपने बिल्कुल इस हवाले से दुरुस्त कहा। जो इलेक्शन देखने जा रहे हैं, जो होने जा रहे हैं, यकीनन ये इस हवाले से बड़ा मुश्किल सिनेरियो है, क्योंकि एक तो वहाँ पे जुल्म सितम रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए कुछ आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हवाले से, क्योंकि मेहताब अशरफ सदर प्रेस क्लब धीरकोट भी हैं और इस हवाले से तमाम तरह सिचुएशन से आगाह हैं, अभी वहाँ पे जो स्ट्राइक्स चल रही हैं, क्या बुनियादी मुद्दा है उन लोगों का, किस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन से राइट्स होने चाहिए? जो आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 1.5 माह से एक मुसलसल तहरीक चल रही है और तहरीक के नतीजे में 31 अगस्त को पूरा मुजफ्फराबाद डिवीजन जो है वहाँ पे पहिया जाम रहा, शटर डाउन रहा और तारीख की सबसे जानदार जो है वो हड़ताल हुई। 5 सितंबर को हमने देखा कि मीरपुर डिवीजन में और फर्स्ट डिवीजन में जो है वो ये मुस्तकिल हड़ताल हुई और उसमें एक गमला भी नहीं टूटा और बहुत ही जानदार हड़ताल हुई। ये जो हड़ताल है उसका जो चार्टर ऑफ डिमांड है ये बार बार वज़ीर-ए-आज़म तक और आज़ाद कश्मीर हुकूमत तक जो है पहुंचाया गया। उसमें मेन 2 चीजें थी। एक तो ये है कि जो बिजली पे टैक्सेस लगे हैं और बिजली जो महंगी दी जा रही है आज़ाद कश्मीर में उसके हवाले से एहतजाज किया जा रहा है, और दूसरा जो है वो आटे की कीमतों में इजाफा, और आटा इस वक्त जो है वो उसकी किल्लत है आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 2-3 साल से, उस पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा था और ये एहतजाज जो है वो इस वक्त भी अभी तक जारी है। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कल दोबारा पूरे आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल पहिया जाम और मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी गई है। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त कैंपेन जारी है, अनाउंसमेंट हो रही है मुकम्मल शटर डाउन की, मुकम्मल पहिया जाम की, और यही तो है कि कल जो है वो आज़ाद कश्मीर भर में मुकम्मल जो है वो शटर डाउन और पहिया जाम होगा। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में जो इम्तहानात हो रहे थे उसको मुलतवी कर दिया। इसी तरह मीरपुर यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम थे उनको 17 अप्रैल तक जो मुलतवी कर दिया गया है। इसी तरह से जो दीगर तालीमी इदारे हैं आज़ाद कश्मीर में, गवर्नमेंट के और प्राइवेट तालीमी इदारे, उन्होंने कल छुट्टी
वकला की तंजीमों ने और जो दीगर ट्रेड यूनियन हैं उन सब ने जो है कल हड़ताल की हमायत का ऐलान किया है। ये जो इस वक्त सूरत बनी है आजाद कश्मीर में, और इसमें इंतजामिया ने गुज़िश्ता 4-5 दिन से मुसलसल कुछ लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया और इस वक्त काफी बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं। वो मुख्तलिफ थानों में हैं और उनको जाहिर है कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिए गए हैं। वो सामने आ रहा है। आज से 4 दिन पहले मुजफ्फराबाद में एहतजाज के दौरान जो है वो पुलिस ने वहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया। इसी तरह से दीगर कई और मुकामात पर भी इसी तरह के जो हालात पैदा हुए, तो उसकी वजह से एक आजाद कश्मीर के अंदर लहर पैदा है आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ, और बार बार जो है वो ये कहा जा रहा है कि आजाद कश्मीर हुकूमत जो है वो यहाँ के लोगों को बिजली जो है, बिजली की जो सब्सिडी है, बिजली में जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो खत्म नहीं करा रही। तो मुतालबा ये है कि जो पैदावारी कीमत है उसके मुताबिक जो है वो आजाद कश्मीर के लोगों को एक बिजली दी जाए। इसलिए पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के जो इस वक्त कवानीन है, जो आइन है, उसके मुताबिक जहाँ से जो चीज पैदा होती है उन लोगों का पहला राइट है। यहाँ पे जो पैदावारी कीमत है उसके मुताबिक आजाद कश्मीर के लोगों को बिजली फराहम की जाए। और इस हवाले से आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी रहमान हक साहब ने पाकिस्तान की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में बड़े क्लियरली वहाँ पे एक मैसेज दिया था, बात की थी कि आजाद कश्मीर के लोगों को 400 मेगावाट बिजली जो है वो पैदावारी कीमत पे दी जाए। और इस पे अभी तक कोई ज्यादा पेशरफ नहीं हुई। और आजाद कश्मीर में नेशनल ग्रिड कायम किया जाए, जिस तरह से यूपी में है, जिस तरह से सिंध में है, जिस तरह से पंजाब में है, जिस तरह से बलूचिस्तान में है, तो यहाँ के लोगों को भी उसी तरह से जो है वो अलग से नेशनल ग्रिड जो है वो उसको बनाया जाए। लेकिन इस पर अभी तक काम नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने जरूर बात की है, पेशरफ जरूर की होगी, लेकिन अभी तक आवाम को मुतमईन करने में वो कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से इस वक्त हालात जो है काफी पेचीदा है। इस तरह काफी लोग पहले से गिरफ्तार कर दिए गए हैं। आज मैं देखा था कि कोर्ट में आज खवातीन ने यहाँ पे जुलूस निकाला और एहतजाज किया। गुज़िश्ता रोज जब मुजफ्फराबाद में खवातीन ने वहाँ पे मुजाहिरा किया और वहाँ पे एक रैली निकाली और एहतजाज किया, और यहाँ पे मर्दों के साथ साथ खवातीन भी इससे पूरी तहरीक के अंदर शामिल हो गई हैं और ये तहरीक जो है वो बहुत जोर पकड़ चुकी है। नाज़रीन, आपको इस हवाले से भी बताएं कि जिस तरह मेहताब अशरफ साहब बता रहे हैं, डेफिनेटली आम लोगों के लिए जो दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि बिजली बिलात ही इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि वो मैनेज ही नहीं कर सकते। मैं आगे बढ़ूंगा और काशिफ ज़हीर कम्बो की जानिब बढ़ूंगा। आपसे इस हवाले से पूछूंगा, एक तो लंदन में जो खालिस्तान तहरीक है और पूरी दुनिया में जिस तरह आगे बढ़ रही है, और ख़ास करके सिखों के खिलाफ जो भारतीय इक़दाम हैं पूरी दुनिया में जिस तरह उन्होंने रवा रखे हुए हैं, और पूरी दुनिया में जो भारत का मकरू चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। कनाडा का वाक़या आपके सामने है, जिस तरह वहाँ पे कत्ल किया गया सिख रहनुमा को, इस तरह पूरी दुनिया में जो मुजाहरे हैं वो बड़े पैमाने पर सिख रहनुमा कर रखे हैं। तो क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया को आंखें खोलनी होंगी, जिस तरह पाकिस्तान डोजियर पेश कर चुका इससे पहले काफ़ी दफ़ा पूरी दुनिया के सामने कि ये मजालिम और ख़ास करके ये दहशतगर्दी भारत कर रहा है, तो अभी भी अगर दुनिया होश के नाखुन ना ले तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी एहसन साहब, एक तो चीज़ इसके अंदर हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये जो इंडियन इस तरह की चीज़ें हैं ये पहली दफ़ा नहीं हुई। इंडिया एक अरसे से ये पाकिस्तान में इंडिया ये कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत सी कश्मीरी क़यादत को टारगेट किया गया, असैसिनेशन की गई, और ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि ये इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध के अंदर भी टारगेट किया गया कश्मीरी क़यादत को, और जो लोग किसी न किसी तरीके से फ्रीडम के साथ लिंक थे। यादव का आप केस देख सकते हैं जी। तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क थे जो अनर्थ किए पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखे और इनको बताया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, आप लोगों को इसके ऊपर हमारा साथ देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आवाज़ को दुनिया में नहीं सुना गया, और ये दे हैव टू बियर द म्यूज़िक। वो जिस तरह से अब उनके साथ हो रहा है, अब ये जस्टिन ट्रूडो जिस दिन वाक़या हुआ इसकी पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग एजेंसीज़ ने कनाडा की उनकी PM सेक्रेटेरिएट में पहुंची और वहाँ इसकी डिस्कशंस हुई। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में जैसे खिताब करके पूरी दुनिया को बताया, और उसके अलावा 1-to-1 उन्होंने डोजियर्स भेजे UK, ये जो अमेरिकन हैं और वेस्टर्न कम्युनिटी के लोगों को। और अभी भी अगर ये अपने वेस्टर्न वर्ल्ड अपने सिर्फ इकोनॉमिक मफादात को देखता रहा और ये
ये जो जिस तरह की ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं इसके ऊपर उन्होंने ना आवाज़ उठाई तो एक वक्त आएगा कि ये एक ऐसी वहशत और बर्बरियत इन कंट्रीज़ के अंदर शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा एक विशियस सर्कल ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है रॉ का, जो इन कंट्रीज़ के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जिसे जो वो उनसे अनवील करने की ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि उन्हें इन लोगों को वहाँ से जो है वो निकालना भी होगा, अदरवाइज़ ये सिचुएशन इससे भी वर्स होगी। और अब देखें जो कैनेडियन पार्लियामेंट है वहाँ पे मोर दैन 20 पार्लियामेंटेरियंस दे बिलोंग टू सिख कम्युनिटी। अब आप उनकी पार्लियामेंट की एक मेजर स्टेट ऑफ जो सोसाइटी है उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, और वो इस केस को अगर ये इस तरह रुक जाता है केस, इसके ऊपर मज़ीद वेस्टर्न कम्युनिटी कोई एक्शन नहीं लेती तो ये बड़ा एक हिपोक्रेटिक किस्म का एक एटीट्यूड होगा। इसका मतलब यही है कि जो खालिस्तान तहरीक है वो बड़े पैमाने पर उरूज पर है, और पूरी दुनिया में जिस तरह मुजाहरे हो रहे हैं दुनिया में अब ये माना जाएगा कि खालिस्तान भी एक तहरीक है, और डेफिनेटली क्योंकि इससे पहले एज सच इस तरह दुनिया के सामने ये मनाजिर नहीं थे जिस तरह अभी हुआ है, और इंडिया पूरी तरह एक्सपोज हुआ है इस तमाम तर मामले में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। मेहताब अशरफ साहब, एक तो इस हवाले से बताइएगा जो आज़ाद कश्मीर के खासकर मसाइल हैं, इस पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का क्या स्टांस है, और ख़ास करके अगर बात की जाए जिन लोगों को आपने वोट देकर मुंतखब किया, असम्बलियों में भेजा, क्या वो भी आपके साथ सपोर्टिव हैं या नहीं? जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हुकूमत है इसमें सारी पार्लियामानी पार्टियां शामिल हैं और वो सारी हुकूमत में है। इस वक्त कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त जो यहाँ पे मुजाहिरीन हैं, लोग हैं, उनके साथ शामिल हो, और वो इसलिए भी शामिल नहीं होना चाहते कि इस वक्त 5 माह बल्कि अब 6वां माह पूरा होने वाला है। आज़ाद कश्मीर में जो गुजरा है उनको पोर्टफोलियोज नहीं मिले, और हर एक अच्छा जो है वजारत लेना चाहता है, तो इस हवाले से भी जाहिर है उनको लालच पड़ी हुई है, और वो सारे लोग जो है वो इस वक्त अपनी वजारतों की तरफ देख रहे हैं, और जो सियासी क़यादत है जिसको लीड करना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। ये लीडरलेस जो है वो प्रोटेस्ट है, और इसमें ताजरान है, इसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसमें सिविल सोसाइटी है, और ये लोग जो इन्होंने मुख्तलिफ अवामी फोरम बनाए हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म से ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, और ये इस एतबार से बहुत कामयाब हड़तालें हुई जिसका मैंने पहले भी तस्करा किया, और कल भी एक हड़ताल होने जा रही है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब भी इस लेवल की जो रियासती लेवल की कोई भी शख्सियत इसमें जब शामिल हुई तो फिर ये इताद टूट जाएंगे और ये लोग मुंतसिम हो जाएंगे, इसलिए कि लीडर हमारे लोगों को तकसीम कर सकते हैं, साथ लेकर नहीं चल सकते, और अवामी इशूज के बजाय जो है वो जाती पार्टी पॉलिसी और जो उस वक्त नंबर गेम है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो इस वजह से आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पॉलिटिशियन को मौका ही नहीं मिला, और नई क़यादत जो है वो उभर कर सामने आ रही है। वो ताजरों की क़यादत है, वो सिविल सोसाइटी से लोग आ रहे हैं, वो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है उनसे हट के बाकी जो है सेकंड लाइन की क़यादत तो जिसमें शामिल है, और आम कारकुन मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन शामिल है, वो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है, और वो जाहिर है इसके अंदर भरपूर तरीके से ये तहरीक चला रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कोशिश जरूर की है, और उनसे मुख्तलिफ वफूद मिलते रहे हैं, बातचीत होती रही है, बड़ा क्लियर मैसेज भी वो देते रहे हैं, अपनी मजबूरियों का भी वो तस्करा करते हैं, और जो वफाकी हुकूमत के साथ जो डीलिंग है उसकी भी बात करते हैं। और मुझे भी कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो निगरान सेटअप है और उनके इख्तियारात इस कदर नहीं है कि वो सारे के सारे हमारे इश्यूज को सॉल्व कर सकें। तो कभी वो ये भी शिकवा करते हैं कि आप 75 साल का की जो खराबियां हैं वो सारी मेरे खाते में डाल दें, और मैं 4-6 माह हुए मुझे यहाँ पे आए हुए सारे मामला में नहीं हल कर सकता। बहरहाल पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि वहाँ बिजली की कीमतों में, और इसी तरह से पेट्रोलियम मसनूआत में, इसी तरह से जो गैस की कीमतों में और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जिस पर इजाफा हुआ, पाकिस्तान में भी एक रिएक्शन है। लेकिन आज़ाद कश्मीर का कुछ रीजन ऐसा है जहाँ से इस तहरीक का आगाज हुआ उसने लिपेट में लिया है पूरे पाकिस्तान को भी, और आज़ाद कश्मीर के अंदर चप्पे चप्पे पे लोग जो है वो निकले हैं, और लोग इस वक्त उनका एक बयानिया है कि आज़ाद कश्मीर से जो बिजली पैदा होती है उस बिजली को जो है फ्री किया जाए, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इसको पैदावारी कीमत पे दिया जाए, इसकी कीमतें कम की जाए, क्योंकि यहाँ से बिजली पैदा होती है, और तकरीबन 250 मेगावाट पाकिस्तान को जाती है, 400 मेगावाट की यहाँ पे जरूरत है, और ये 400 मेगावाट जो पैदावारी कीमत पे दी है, प्राइम मिनिस्टर तो कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक वो लोगों को, आज़ाद कश्मीर के आवाम को, मुतज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो प्रेशर है वो मौजूदा हुकूमत पे है, और जो ये 18 लाख जो है वो इस हवाले से यकीनन
जो है परेशान भी है, और गुज़िश्ता एक हफ्ते से उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, उनको एक्टिव किया है कि लोगों की तहरीक को कम किया जाए। और हमने देखा कि जो कैंप लगे हुए थे, वो कैंप जो है जो पीछे जो है वो जुमा और हफ्ते की दरगानी शब वो उखेड़ दिए गए और वो खत्म किए गए, फिर लोगों ने कायम किए, फिर पुलिस उसको उठा देती है। तो इस ये सिचुएशन बनी हुई है। तो इसमें जाहिर है कि जब तक कोई संजीदगी के साथ बैठकर जो अवामी एक्शन फोरम है या पॉलिटिकल जो हमारी क़यादत है वो कुछ संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी, तो ये तहरीक मज़ीद उभरेगी और मज़ीद आगे जा सकती है और उसके नुकसान भी हो सकते हैं। काशिफ ज़हीर साहब पॉलिसी एक्टिविस्ट है और तजियाकार भी, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि आपने कश्मीर के हवाले से किताबें भी लिखी। आपसे इस हवाले से लाजमी पूछूंगा कि जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं और ख़ास करके डेलीगेशन जो जाते हैं वो आज़ाद कश्मीर से भी जाते हैं, कुछ आप कह सकते हैं एज सच उस तरह तो नुमाइंदगी नहीं दी जाती, लेकिन अगर पाकिस्तान जो सेनेट से अगर जाएं, नेशनल असम्बली से जाएं, इसके अलावा आप क्या समझते हैं, आज तक आपने क्या मॉनिटर किया कि कश्मीर के लिए कौन सी पॉलिसी हमें अपनानी होगी जिससे कम से कम वहाँ पे जो इंसानी हुकूक के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इंसानी हुकूक की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल मौजूद है, इस तरह के दीगर जो इदारे मौजूद हैं वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इसके लिए एक तजवीज़ दी थी व्हेन आई वाज पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव एडवाइज़र, जिन दिनों में पार्लियामेंट में था। तो एक एडवाइस थी जो शायद वो नहीं हो सकी और शायद किसी दौर में वो हो जाए। हम पूरी दुनिया के अंदर तमाम कंट्रीज़ में तकरीबन पाकिस्तान के मिशंस मौजूद हैं, हमारी एम्बेसीज मौजूद हैं, वहाँ पे हमारे अटैचेज़ मौजूद हैं, कल्चरल अटैचेज़ मौजूद हैं, कमर्शियल अटैचेज़ मौजूद हैं। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत है कि कश्मीर सेल के नाम से या कश्मीर डेस्क के नाम से कुछ इस तरह का एक सेटअप बनाया जाए, एग्जिस्टिंग सेटअप को यूटिलाइज करते हुए। हम ये नहीं कह रहे कि आप नया पैसा लगाएं, आप इन्वेस्टमेंट्स करें, हायरिंग करें, आप सिर्फ इतना कर दें कि आपके जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे फॉरेन ऑफिस के अंडर एम्बेसीज मौजूद हैं, वहाँ पे एक सेल बना दें और वो वहाँ के मीडिया के लिए प्रेस रिलीज जारी करना शुरू कर लें टू स्टार्ट विद। फिर वहाँ की जो कम्यूनिटी है, वहाँ के जो कम्यूनिटी लीडर्स हैं, उनके लिए कोई महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा कोई सेशन वहाँ पे बनाया जाए, कोई डॉक्यूमेंट्रीज उन्हें दी जाएं। फिर वहाँ के सोशल मीडिया को सेंसिटाइज करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे जो ऑफिशियल पेजेस हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन, और फिर जो आपके पास बहुत बड़ी वॉलंटियर फोर्स हो सकती है ह्यूमन राइट इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए, वो वहाँ पे आपका जो डायस्पोरा है। और फिर आपके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, कश्मीरी स्टूडेंट्स, दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर आपको फ्री वॉलंटियर फोर्स मौजूद है, एक्टिविस्ट मौजूद हैं हमारे। तो ये एक ऐसा सोशल कैपिटल है जो अनटैप्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड है, जिसको एक्सप्लोर करके ना सिर्फ नेशनल नैरेटिव को प्लीड किया जा सकता है, बल्कि जो मिजरीज़ हैं हमारे भाइयों की वहाँ पे वैली के अंदर, उन्हें दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करके सिंपथीज गेन की जा सकती हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक विजन की ज़रूरत है, कोई वसाइल आपको नहीं, रिसोर्सेज नहीं चाहिए, सिर्फ यू हैव टू स्पेयर फ्यू मोमेंट्स फॉर दिस वेरी नोबल कॉज। एक बड़े विजन की ज़रूरत है। मेहताब अशरफ, सदर प्रेस क्लब दीरकोट, आपने कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ ज़हीर कम्बो, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।